Hello and welcome to the Adda 24/7 platform. My name is Marut Sharma, your critical reasoning and quantitative techniques faculty. How are all of you guys? So in this video, we will be discussing about the complete detailed analysis of the critical reasoning section, right? तो हम अब बात करेंगे critical reasoning की ओवरऑल पेपर कैसा रहा और हर जो है पैसेज को हम पढ़ेंगे एक बार और उसका आंसर जो है हम लोग निकालेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे टू अंडरस्टैंड कि आपका एग्ज़ाम एक्चुअली में कैसा गया है और कैसा आपका एक्सपेक्टेड जो है वो रेंज होना चाहिए मार्क्स का। एक तरीके की आंसर की भी मैं आपको दे ही रहा हूँ साथ साथ में, सो दैट विल वेरीफाई एज टू व्हाट हाउ योर परफॉर्मेंस वाज इन द एग्जामिनेशन। सो वील स्टार्ट विद द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन हियर। तो पहला पैसेज आपके सामने है। टोटल 4 पैसेजेस आए हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में, जिसमें से 3 जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड है और एक जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड आया है, विच हैज़ मेजर इश्यूज इन इट, बट वील कम टू दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो, सो डू वॉच इट टिल द एंड, राइट। तो लॉजिकल रीजनिंग की बात करूंगा। आई जस्ट रीड द फर्स्ट पैसेज फॉर यू briefly, very quickly. Being a consultant, your work consists of a deep examination of the company's environment and its internal system to notice inefficiencies and potential improvements. The interaction with the company's management and different sections to decipher their objectives, opportunities, and processes. This means that through the use of data analysis, industry best practices, and the formulation of creative ways of solving all problems to come up with unique solutions to all problems to increase efficiency and productivity and hence increase profitability for employers. This might entail operations such as logistic redesign, business process reengineering, adopting new application systems, or even community-related programs. People management is a critical component of change management to make sure that all the relevant parties interpret the potential alterations positively. Also, to offer orientation and create resources to explain the changes to the group and make it comfortable with the shift. The general goal is the organization's ability to continue to grow and remain relevant with the shareholders and stakeholders in the industries it operates. Now we look at the first question here. जो आपके सामने क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस तो यही हैं। अच्छा, इसमें I'll just give you an in-depth analysis first. अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो पैसेज से आपको लगेगा कुछ हद तक कि काफ़ी क्वेश्चंस में डायरेक्ट रिलेशन बन ही नहीं रहा है। मतलब बात वो एक कंसल्टेंट होने की कर रहा है और एक इंडस्ट्री में एक स्पेसिफिक कंसल्टेंट का क्या रोल है उसकी भी बात कर रहा है, काफ़ी सारे वर्ड्स और जार्गन्स भी यूज़ कर रहा है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, देयर माइट बी नॉट एग्जैक्ट कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस हियर, देयर आर सम वेरिएशंस। कुछ क्वेश्चंस में है, कुछ में नहीं है। बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस इंडिविजुअली एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शंस मियरली, आप ऑप्शन से ही काफ़ी इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आई मीन 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस विच आर पुट अक्रॉस। आइदर इट इज़ अ 2-2 केस और इट इज़ अ 3-1 केस। 3-1 केस मतलब 3 चीज़ें आप आराम से रिजेक्ट कर पाओगे तो एक आपका आंसर आएगा। 2-2 में 2 आराम से रिजेक्ट हो जाती हैं, 2 में आपको चॉइस करना पड़ता है, विच बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो दिस इज अ प्योर 3-1 केस क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट अ कंसल्टेंट ऑप्टिमाइज टू इंप्रूव कंपनी एफिशिएंसी। नाउ अब ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस। ऑफिस डेकोरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, employee dress code and lunch menus. So it is very clear that office decoration, employee dress code and lunch menus are not the expected answers at all, and neither they are mentioned anywhere in the passage. So supply chain management, option B, is the clear answer here. In the next question we see that why is communication the most relevant thing for a consultant. तो यहाँ पे हम बोलेंगे to ensure all stakeholders understand the proposed changes. बाकी के ऑप्शंस देखिएगा। टू ऑर्गेनाइज कंज्यूमर मीट्स, टू अपडेट द कंपनी वेबसाइट, टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें वो बोल रहा है कि कम्युनिकेशन जो है वो मोस्ट रेलेवेंट क्यों है कंसल्टेंट के लिए। तो उसमें क्लियरली आपको बताया गया था कि स्टेक होल्डर्स तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है, विच बिकम्स द फर्स्ट ऑप्शन, टू एंश्योर दैट ऑल द स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड द प्रपोज्ड चेंजेस। तो जब भी कंसल्टेंट डील करेगा आपकी टॉप मैनेजमेंट के साथ और फिर कुछ चेंजेस प्रपोज करेगा, दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर्स एंड दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन बिकम्स द मोस्ट रेलेवेंट थिंग। 87, व्हाट एडिशनल सपोर्ट माइट अ कंसल्टेंट प्रोवाइड टू हेल्प द टीम अडेप्ट टू द न्यू प्रोसेसेस। अगर कोई नया प्रोसेस सेटअप कर रहा है कोई कंसल्टेंट, तो टीम को एडिशनल क्या दे सकता है जिससे इट हेल्प्स देम टू अडेप्ट बेटर। नाउ लुक एट द ऑप्शन अगेन। प्लानिंग अ रिट्रीट फॉर द टीम मेंबर्स इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, टू अडेप्ट टू द प्रोसेस। ओके, इट माइट ओनली बी अ फन एक्टिविटी बट नॉट अदरवाइज। ऑप्शन सी देख लो, पर्सनल काउंसलिंग, अगेन वन ऑन वन काउंसलिंग is not very much advisable and possible. Mental health programs, I think we are not even talking about mental health here. It is more about changes
changes which are being brought about, which are being suggested by a consultant, and how do we make it easier for people to adapt to it. So training and support is the absolute easy and the direct answer here. Again 3-1 केस बन रहा है, आराम से एलिमिनेट करोगे, आंसर निकाल दोगे, राइट। इसमें नेक्स्ट इमेज पे चल देते हैं। So this is the next image. Now we'll move on to the next question, which is 88. What is the primary responsibility of you being a company's efficient consultant? अगर आप एक कंपनी के अच्छे कंसल्टेंट है, एफिशिएंट कंसल्टेंट है, so what is your primary responsibility? So here we see that we have 4 options again: analyzing the organization structure, process and market position; managing daily operations, no, consultants don't take care of daily operations; hiring new employees, no, that is the work of the HR department; conducting maintenance, again that can come under admin. So it's a clear cut answer here: analyzing the organization structure, process and market position. consultant का ये एक major काम होता है। 89 पे अगर आप मूव करोगे, so with whom does a consultant work closely to understand the company's goal and challenges? I think I have already told you, अभी बातों बातों में मैंने बोल दिया था, when the consultants work with the top management, they do not work with customers. Consultants are never involved with customers. They are working with higher management and various departments. They are not working with external vendors. They are not working with competitors at all. Again, it's a simple 3-1 case. 3-1 elimination पे major इस पैसेज के, तो पहला पैसेज जो था वो काफ़ी डायरेक्ट था, काफ़ी आसान था। 3-1 elimination पे उसका काम हो गया। Imagine yourself as a consultant and find what methods you will use to develop customized solution. अब यहाँ पे क्लियर कट ये पैसेज बेस्ड आंसर है। पैसेज से कीवर्ड उठा करके आंसर दिया गया आपको। इंट्यूशन एंड गेस वर्क एब्सोल्यूट रिजेक्शन है। रैंडम सिलेक्शन एब्सोल्यूट रिजेक्शन है। What might confuse students is social media trends and data analysis, industry best practices and innovative strategies. इसमें भी ज़्यादा confusion नहीं होगा, आप क्लियरली डी को आंसर टिक कर दोगे, विच इज़ द राइट वन हियर। बट अगर वो पूछ रहा है कि कंसल्टेंट होने के नाते आप कस्टमाइज सोल्यूशन बनाने के लिए क्या यूज़ करोगे, तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स काफ़ी लोग सोचने लगते हैं, बट यहाँ पे क्लियर कट पैसेज में मैंशनड है डेटा एनालिटिक्स, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेटिव स्ट्रेटजीज। अच्छा, यहाँ पे आपको फील होगा कि सिंस द क्वेश्चन इज आस्किंग योर ओपिनियन, यू आर एंटाइटल्ड टू गो अहेड विद एनी अदर ऑप्शन, बट दैट इज नॉट द केस। दिस इज अ ट्रिक वे टू आस्क यू, wherein actually it has to be related to the passage. Okay, now let's move on to the next passage. अगला passage पढ़ लेते हैं। तो इसमें partly आपके पास ये इतना हिस्सा है, ये पढ़ लेंगे, फिर next image लिखा दूंगा। So I'll just read it for you. While a majority of homeless groups exist solely in modernized cultures, homelessness remains a problem throughout the world. Everywhere there are people in constant search of food, water and shelter. Many of these people have nowhere to go sorry, and can find no end or relief to their suffering. Homelessness was originally believed to be a cultural problem, but is now revealing itself as a global problem. It is a problem suffered by all of humanity and must be faced and solved as such. Although this problem exists everywhere, it is more severe in certain parts of the world. Due to the differing circumstances of homelessness around the world, there can be no one solution or one set of guidelines for everyone to follow. Even the United States constantly struggles with homelessness despite being one of the wealthiest countries in the world. According to a 2005 survey by the United Nations, 1.6 billion people lack adequate housing. The causes vary depending on the place and person. Common reasons include a lack of affordable housing, poverty, a lack of mental health services and more. Homelessness is rooted in systemic failures that fail to protect those who are most vulnerable. Approximately 5,80,000 people, right? So this is approximately 5.8 million people experience homelessness on any given night in the United States, as stated by the Housing and Urban Development Department of the United States. The number of individuals experiencing homelessness varies by region, with urban areas experiencing higher rates of homelessness compared to rural areas. The COVID-19 pandemic has exacerbated homelessness and housing insecurity, leading to increased rates of eviction, unemployment and housing instability. Using social distancing measures to curb the virus's transmission has presented difficulties for homeless shelters,
and service providers in maintaining their capacity. The economic fallout from the pandemic has further strained resources and support systems for individuals and families experiencing homelessness. Okay, now let's look at the first question. The first question says, homelessness in reference to the above paragraph can be observed most closely in the form of. अब आपको लगेगा inadequate, अभी again ये you can read it clearly. So it is inadequate entertainment avenues, a shortage of appropriate clothing, inadequate medical services और poor prospects for employment. तो यहाँ पे आपका क्लियर कट आंसर जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है मेजर स्टेमिंग हो रही है. सो ऑप्शन सी पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है कैन बी मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद होमलेसनेस. ठीक है, आई थिंक ए और आप देखो इनएडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज, मीडियल सर्विसेज लिखा हुआ है आई थिंक यहाँ पे, बट दैट मे नॉट बी डायरेक्टली लिंक्ड टू इट. Inadequate entertainment avenues, I think this is a straight away rejection. Shortage of appropriate clothing may not compulsorily be linked to homelessness alone. But अगर आप poor prospects for employment की बात करो तो मेजरली वहाँ से जो है homelessness stem up करेगा. Approximately how many people in America are currently experiencing homelessness on any given day? अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहा है, काफ़ी जगहों पे आपको मल्टीपल आंसर्स भी मिल रहे हैं, बट इसका स्ट्रेट क्लियर कट आंसर है 5,80,000 यानी कि 5.8 मिलियन का नंबर आपको दिया गया था और वो जो है नंबर आपका मोर देन 5.5 मिलियन, ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट. बट आई थिंक 5,80,000 होगा तो वो देखना पड़ेगा एक बार. 5.580000 it becomes okay. I think option B should be the right answer. Okay, next let's look at the next one. Which of the following is not a myth about people experiencing homelessness? So people who are homeless choose to be so by themselves? No, this is a myth. People experiencing homelessness are lazy, again a myth. All people who experience homelessness are addicts, this is again a myth. People experiencing homelessness find it difficult to obtain a job. So this is not a myth about people experiencing homelessness. Option D is a clear cut answer. Again 3-1 केस है, आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे. Let's look at the next image now. Homelessness, I think ये वाला बस. So now we are moving on to the next question. For the above paragraph, which of the following statement is true? When people in industrialized civilizations think of homelessness, they generally imagine third world countries where poverty is rampant. अच्छा, एक statement, एक छोटा सा statement लिखा हुआ था that homelessness is not only restricted to one part of the country but majorly seen in some places, but it is also there in other parts as well. So ये direct imagination आप वहाँ से derive नहीं कर सकते हो from the passage, right? But a lot of students end up marking this because they feel that this is what the reality is. So their field-based answers makes option A correct, which is not right. Generally, the impoverished are thought to exist in third world countries only, but they are present even in the largest cities of the world. This option B again becomes quite correct. You can say option B कुछ हद तक सही है. ऑप्शन सी कह रहा है होमलेसनेस इंक्रीजेस ड्यू टू मेजर टर्बुलेंस ऑन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स. कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात की गई थी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी बात की गई है. सो इसमें इसीलिए सिचुएशन डाइसी हो रही थी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. ए मे श्योरली नॉट बी करेक्ट बट बी एंड सी आर मोस्टली करेक्ट. सो यहाँ पे क्या डी लगेगा या फिर सी ही आंसर लगेगा, तो इसमें एक डाइसी सिचुएशन में पड़ता है इंसान कि हम लोग क्या आंसर मार्क करें. So according to me, I think C is the most correct answer, most closest answer because A I think यहाँ पे नहीं आना चाहिए. बट कुछ लोग इसका D भी कह रहे हैं, तो ये आपके लिए एक डाइसी सिचुएशन होगी. अभी इस पे क्लैरिटी है नहीं, ठीक है, बट मेरे हिसाब से C होना चाहिए इसका आंसर. Next, let's move on to the 95th question. There are several causes of homelessness. Which of the following is the least likely cause of homelessness? So
इसका जो आंसर है वायलेंस इन द होम कैन लीड टू होमलेसनेस। अब ये आपको थोड़ा पैसेज पढ़ के सेल्फ एनालिसिस करके निकालना है, ठीक है। लॉस ऑफ जॉब और इनकम, अगेन सब्सटेंस अब्यूज, सो ऑल दीज कैन बी कॉजेज ऑफ डायरेक्ट होमलेसनेस, बट प्रॉपर हेल्थ केयर ना मिल पाने की वजह से कोई होमलेस हो जाए, देर इज नो डायरेक्ट लिंक हियर। ऑप्शन डी becomes a clear cut answer here. Homelessness in case of mental illness can be amplified because of the following reasons. तो कौन सा ऐसा रीजन होगा जिससे होमलेसनेस जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगी? द स्ट्रेस ऑफ बीइंग होमलेस में एग्जैसरबेट प्रीवियस मेंटल इलनेस एंड एनकरेज एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस एंड सब्सटेंस अब्यूज। आई थिंक दिस इज वेरी मच देयर इन द पैसेज। तो ऑप्शन ए काफी हद तक सही होता दिख रहा है, बट आगे भी देख लो। पीपल विद मेंटल इलनेस रिमेन होमलेस फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड हैव लेस कॉन्टैक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, पार्शियली अगेन इट इज करेक्ट। ऑप्शन बी मे बी राइट। Poor mental health predisposes individuals to homelessness and homelessness exposes individuals further to particularly severe health problems. ये भी पैसेज की जो मेंशन चीजें हैं उसका रीस्टेटमेंट है, तो यहाँ तीनों करेक्ट होते नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव बिकम्स द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज। यस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ द क्रिटिकल रीजनिंग और द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इन द क्लैट एग्जामिनेशन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट रहा है और उसका प्राइमरी रीजन है कि इसका सेटअप तो बहुत इजीली लग रहा है बट क्वेश्चंस मिसमैच हो रहे हैं। और ये हम लोग जब एनालिसिस में लाइव भी थे तब भी मैंने आपसे शेयर किया था लाइव सॉल्व करते हुए दैट देयर इज सम फॉलिसी, सम फॉल्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर भी मैं आपको लगा के दोबारा से दिखा देता हूँ और मैं आपको ये भी लाइव दिखा देता हूँ कि गलती कहाँ है, ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 लोग जो है एक सिटिंग में बैठे हुए हैं, 9 लोग एक सिटिंग में हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था एक सर्कुलर सिटिंग में बैठे हुए हैं, 9 लोग हैं। तो 9 लोग अगर आप ऑड नंबर ऑफ पीपल बिठाते हो तो इक्वल स्पेसिंग करके बिठाओगे, इसमें ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड दे आर ऑल फेसिंग द सेंटर। तो ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ बस ताकि आपको इशू ना है दैट दे आर ऑल फेसिंग द सेंटर। अब अगर आप देखो राम, श्याम, रोहित, मोहित, रोहन, सोहन, मोहन, राकेश एंड सुरेश, 9 people है सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर। रोहित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम, रोहन इज फोर्थ टू द राइट ऑफ राम, रोहित इज टू द लेफ्ट, रोहन इज टू द राइट, थर्ड एंड फोर्थ। सो रोहित इज टू द लेफ्ट ऑफ राम, सो वी कैन फिक्स राम्स पोजिशन हियर। यहाँ पे राम की पोजिशन आप फिक्स कर दीजिए, ठीक है। रोहित उसके थर्ड लेफ्ट पे है तो 1 2 3 रोहित यहाँ आ जाएगा, और रोहन जो है वो फोर्थ राइट पे है तो 1 2 3 4 रोहन जो है वो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो ये पहली तो इन्फॉर्मेशन आपको दी है। राम, आप जब भी सिटिंग स्टार्ट करोगे तो किसी एक की पोजीशन पहले फिक्स करके स्टार्ट कर सकते हो। आगे अगर हम जाएंगे तो रोहन इज ओके, मोहित इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम। सो सुरेश इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम एंड मोहित इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश। तो सेकंड टू द राइट ऑफ राम सुरेश आ जाएगा एंड मोहित जो है वो उसके फोर्थ लेफ्ट पे है 1 2 3 4। सो मोहित यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव 4 places to us, so we have 1, we have 2, we have 3 and we have 4. Now watch very carefully. The next statement says Sohan is third to the right of Shyam. तो अब आपके पास केसेस बन रहे हैं बेटा। सोहन इज थर्ड टू द राइट ऑफ श्याम, तो आप श्याम को फिक्स करोगे और उससे थर्ड राइट पे चेक करोगे। तो श्याम को मान लो मैंने यहाँ बिठाया, थर्ड राइट चेक करोगे 1 2 3 सोहन यहाँ नहीं बैठ सकता है तो श्याम यहाँ नहीं बैठेगा। फिर श्याम को यहाँ बिठाया 1 2 3 सोहन यहाँ नहीं बैठ सकता, श्याम यहाँ नहीं बैठेगा। श्याम यहाँ बैठेगा 1 2 3 सोहन नहीं बैठ सकता, लेकिन श्याम यहाँ बैठ गया 1 2 3 सोहन यहाँ बैठ सकता है। सो दिस बिकम्स अ क्लियर विनर हियर। तो यहाँ पे श्याम आ जाएगा, यहाँ पे सोहन आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया श्याम और ये आ गया सोहन। अभी भी हमारे पास 2 पोजीशंस वेकेंट है, ये और ये। और लास्ट स्टेटमेंट आपसे कह देता है मोहन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राम। तो मोहन जो है वो राम का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो यानी कि मोहन कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ नहीं बैठ पाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। दिस इज मोहन। और अगर आप लास्ट में नाम पढ़ोगे तो नाम बच जाएगा राकेश का। तो ये आपका अरेंजमेंट है सिटिंग का, ठीक है। अब देखना गलती कहाँ हुई है, जस्ट लुक एट द मिस्टेक्स। सो क्वेश्चन नंबर 97 सेज हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राकेश। राकेश के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एंड द मोमेंट आई लुक एट द क्वेश्चन, राकेश के सेकंड लेफ्ट पे आई कैन इजीली सी सोहन बैठा है। मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसके अलावा ये सिटिंग नहीं लग पाएगी किसी और तरीके से। क्लियर कट आंसर सोहन होना चाहिए, राइट। एंड व्हेन आई लुक एट द ऑप्शंस राम, मोहन, मोहित और डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है।
तो राम, मोहन, मोहित तीनों में से आंसर नहीं है. एंड द डेटा इज नॉट inadequate. द डेटा इज sufficient for you to answer that who is sitting in that position. This question becomes wrong. Either they wanted to ask you who is second to the right of राकेश, तो मोहन आंसर आ जाता. या जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये फेसिंग द सेंटर नहीं है, शायद फेसिंग आउटसाइड द सेंटर देना चाहता था और ये जो है उससे मिस हो गया है, इसीलिए उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर आगे गलत है. सो 97 जो है वो एरर मार्क होगा, वो आइदर विड्रॉ होगा या फिर चैलेंज होगा और इसकी मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे. बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट. एंड देयर इज नॉट ओनली वन बट मल्टीपल क्वेश्चंस हियर. सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ अ ब्लंडर विच हैज हैपेंड. 97, 98, we'll move on to this one now. Look at all the questions, just see how we are going. ठीक है, ये देखना आप. 98 is asking you who is immediate right of मोहित. मोहित के immediate right पे कौन है? तो मोहित के immediate right पे सोहन आंसर आ जाएगा. तो वो अगर आपके पास है, यस, 98 का ए करेक्ट हो जाएगा, राइट. तो 98 का ए आप मार्क कर दोगे. 99 में बोल रहा है फिर से हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सोहन. तो सोहन के थर्ड राइट पे कौन है? तो सोहन के थर्ड राइट पे 1 2 3 सुरेश आना चाहिए. क्लियर कट आंसर है, सुरेश आना चाहिए. बट आंसर इसमें से कोई है ही नहीं. सुरेश ऑप्शन में ही नहीं है. सुरेश ऑप्शन में ही नहीं है. दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल. तो 99 भी जो है वो एरोनियस है, वो गलत है. इसका भी या तो क्वेश्चन विड्रॉ होगा या फिर मार्क्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे. मोस्ट प्रॉब्ली विड्रॉ हो जाता है वो, जहाँ पे टोटल स्कोर में से कम हो जाते हैं मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज राकेश पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रोहन. रोहन के हिसाब से राकेश की पोजीशन क्या है? तो रोहन के हिसाब से अगर आप राकेश की पोजीशन देखो, रोहन यहाँ है, राकेश इज 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट और 1 2 3 4 5 6 टू द राइट. थर्ड टू द लेफ्ट, 6 टू द राइट. थर्ड टू द लेफ्ट है ही नहीं, 6 टू द राइट भी है ही नहीं. ठीक है. तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं. क्वेश्चन नंबर 100 भी जो है वो या तो विड्रॉ होगा और या फिर मार्क्स सबको मिलेंगे. हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन. मोहन के थर्ड राइट पे कौन है? सो मोहन के थर्ड राइट पे 1 2 3 रोहित होना चाहिए. रोहित ऑप्शन में फिर से नहीं है. सो अगेन हाँ, यहाँ पे नन ऑफ दीज है बट ऑप्शन में. लकीली यू हैव नन ऑफ दीज, सो दिस कैन बी मार्क्ड एज अ करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी विल बी राइट. एंड हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ रोहन. रोहन के फिफ्थ राइट पे कौन है? तो रोहन के फिफ्थ राइट पे कौन होगा? फिफ्थ राइट मतलब 1 2 3 4 5, इट इज़ राम. और राम अगर ऑप्शन में होता तो आंसर करेक्ट हो जाता, बट वो है ही नहीं. सो इट्स अ क्लियर कट मिसमैच समवेयर. इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ गलत तभी हो सकते हैं जब आप क्वेश्चन कुछ और देना चाहते थे लेकिन आपने वो चेंज नहीं किया, लेकिन अकॉर्डिंगली बाकी के जो पैसेज और कुछ और देना चाहते थे क्वेश्चंस बदल दिए, या पैसेज चेंज कर दिया बट क्वेश्चंस नहीं बदले. तो इसी मिसमैच की वजह से ये गलतियां हैं. हालांकि दो क्वेश्चन बाय फ्लूक गलती से सेट हो गए आपके सिचुएशन में, इसीलिए अब वो शायद वो उससे विड्रॉ नहीं करेंगे. आइडियली इनको ये पूरा पैसेज विड्रॉ करना चाहिए. आइडियली दिस इज व्हाट आई फील, that you should remove these marks from your total calculation. That brings down the cutoff slightly. तो जो कट ऑफ का एनालिसिस बोल रहे हैं ना 90 प्लस 90 प्लस 95 प्लस, उस केस में थोड़ा वेरिएशन आएगा क्योंकि काफ़ी एरर्स हैं. तो वो एरर्स अगर आप रिमूव करोगे तो फिर कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट होगी. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. Otherwise, if the marks are awarded to everybody, then your scores are going to jump up. So in that case, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा का स्कोर आएगा तो आप शायद कट ऑफ की रेंज में आ जाओगे. So this is one of the cases which is happening right now. Next हम लोग पढ़ लेते हैं पैसेज. ये नेक्स्ट पैसेज का स्टार्टिंग है, लास्ट पैसेज है ये. 3 पैसेजेस हम लोग देख चुके हैं, ये 4th पैसेज है क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन का, एंड वील बी डन विद दैट. लेट्स जस्ट रीड इट वंस. India is poised for rapid economic growth, potentially spurred by a young population driving production and demand. In the process, inevitably, lifestyles are being dramatically altered for the worse. India now reports the highest growth of ultra-processed food consumption among the youth, as well as low levels of exercise and adequate sleep. Cultural changes, including smartphones and a preponderance, अभी यहाँ पे ये रुक गया है. चलो. Preponderance of English in schools are also associated with weakened family relationships. Until recently, in the absence of extensive data, the role of these factors on mental well-being, encompassing our full range of mental capability, was not well understood.
Recent findings based on a large database of over 150,000 individuals in India are beginning to shed light on the correlates of mental well-being among adolescents. The findings are dire. There is a silent epidemic of mental ill health in India. Previous studies have found that ownership of smartphones is frying the brain. Data also suggests that it is not merely the ownership of a phone, but also the early age of access that is associated with the worse cognition and mental well-being as young adults. The young brain is developing and must be nurtured. These gadgets are handed to adolescents, presumably more out of convenience than sound logic. The American philosopher David Henry Thoreau remarked over 175 years ago, technology is an improved means to an unimproved end. This is an extreme opposition, but one worth mulling. India reports the highest growth in consumption of ultra-processed foods. Some evidence suggests that these foods are as addictive as smoking. Recent data globally and from India shows a strong association between the consumption of ultra-processed foods and poor mental well-being, particularly the capacities for emotional and cognitive control. Okay? Now, let's look at the first question. Which of the following can be a plausible solution for better mental well-being among the youth? अब देखो ऑप्शंस देखोगे आपको आंसर समझ में आ जाएगा. लिमिटिंग द कोरिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. अभी अगर आप ये बोल दो कि भाई कोरिलेट करना ही बंद कर दो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच में, अपने आप ठीक हो जाएगा. नो, दैट इज नॉट अ वेरी वैलिड सोल्यूशन. लिमिटिंग द रिसर्च ऑन एक्सेसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन्स. नो, इफ यू लिमिट द रिसर्च इटसेल्फ देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनी हाउ टू improve the mental health being, mental well-being. Limiting the widespread consumption of ultra processed foods. तो पूरे पैसेज में खासकर एंड में जो खासकर कंक्लूजन की बात है वो यही कहना चाह रहा है ऑथर आपसे कि आजकल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो है वो प्राइमरी लिंक बना रहे हैं मेंटल वेलबींग के साथ. यानी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन से पीपल आर बिहेविंग लाइक एडिक्ट्स. सम पीपल लाइक जो स्मोकिंग से कंपेयर कर रहा है उसे, तो उस वजह से जो है मेंटल हेल्थ खराब हो रही है. सो दिस ऑप्शन सी बिकम्स द राइट आंसर हियर बिकॉज इज क्लोजेस्ट टू योर कंक्लूजन ऑल्सो. लिमिटिंग द इन्फॉर्म्ड यूज ऑफ स्मार्टफोन्स अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स. आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी वेग वन. सो ऑप्शन सी इज अ क्लियर कट विनर हियर. Let's look at the next question here. Which of the following statements by the author lack credible evidence in the passage? अब आप देखोगे एक्सेसिव मोबाइल यूजेज लिंक टू मेंटल हेल्थ इश्यूज. इसका उसने रिपोर्ट पेश किया है, एविडेंस है. प्रोवाइडिंग मोबाइल्स टू एडोलेसेंट्स रिजल्टिंग इन मेंटल स्ट्रेस, उसका भी डेटा प्रेजेंट किया है, एविडेंस है. स्टूडेंट्स लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज हैव वीकेंड फैमिली रिलेशनशिप्स. तो उसने बोला था ना कि प्रिपोंडरेंस हो गया है इंग्लिश का स्कूल्स के अंदर जिसकी वजह से फैमिली रिलेशनशिप्स वीकन हो रहे हैं. इसका उसने कोई एविडेंस नहीं दिया है. ये ऑथर का सिर्फ एक सिंगल सिंपल ओपिनियन है. तो ऑप्शन सी हो जाएगा वैसा स्टेटमेंट जिसमें ऑथर के पास क्रेडिबल एविडेंस पैसेज में नहीं है. ऑप्शन सी शुड बी द राइट वन. इनएडिक्वेट स्लीप एंड जंक फूड रिजल्टिंग इन मेंटल डिस्ट्रेस का भी उसने डेटा प्रोवाइड किया है. सो इट बिकम्स अगेन अ क्लियर विनर दैट किसका एविडेंस मौजूद नहीं था. ओके, आई थिंक इसका भी हमने कवर कर लिया है सारा, राइट? चलिए इसे देख लेते हैं. These gadgets are handed to adolescents presumably more out of convenience than sound logic. Which of the following is the most suitable explanation echoed by the author as per the given statement? So the logic prevails over reasoning. ऐसा तो नहीं बात करी है. Logic and emotions go hand in hand, नहीं बात की है. Logic taking a backseat over utility. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि लॉजिक जो है, कन्वीनियंस की बात है सिर्फ, लॉजिक तो सबने छोड़ ही दिया है. यूटिलिटी ये इंपॉर्टेंस है, उसको ज़्यादा तवज्जो, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और लॉजिक को नहीं. आई थिंक ऑप्शन सी बिकम्स अ क्लियर विनर हियर. लॉजिक एंड बेनिफिट्स कैन नेवर बी अंडरस्टूड टुगेदर. नो, दिस इज अगेन वेग. दिस बिकम्स वेग. ऑप्शन ए और बी पूरी तरह आपको आंसर नहीं देंगे. सी इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर. 106 की बात करेंगे. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. टाइटल आपका क्या होगा बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे? दिस इज अबाउट मोर अबाउट यूथ, मोबाइल यूजेज, योर फास्ट फूड कंजम्पशन एंड so pre-processed food consumption and overall the conclusion is talking about mental health. तो किस तरह से मेंटल हेल्थ डिटीरिएट हो रही है मोबाइल यूजेज की वजह से, आपका वेलबींग खराब हो रही है प्री प्रोसेस फूड कंजम्पशन की वजह से. सो दिस सिंपली बिकम्स इम्पैक्ट लाइफस्टाइल एंड मेंटल हेल्थ. ऑप्शन ए कैन बी कंसिडर्ड द मोस्ट एप्ट टाइटल फॉर द पैसेज बिकॉज लाइफस्टाइल की भी बात कर रहा है, मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहा है.
ठीक है, चलो ये पार्टली था पैसेज में, लैंग्वेज, कल्चरल चेंज, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द यूथ पार्टली था पैसेज में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कोई ऐसा बात नहीं हुई है, मेंटल हेल्थ के बारे में पार्शली बात हुई है, तो ये भी पार्शियल पैसेज हो जाता है, मतलब पार्शियल हो जाता है। ए वाला जो है वो पूरा वेल डिफाइंड है पैसेज के साथ। देखो योर टाइटल शुड ऑलवेज बी इन लाइन विथ योर कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के साथ अगर टाइटल लाइन है तो प्रॉपर रहता है। कंक्लूजन की बात आपको ऑप्शन ए में नजर आएगी। 107 की अगर मैं बात करूं, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट टेक्नोलॉजी एज एन इम्प्रूव्ड मीन्स टू एन अनइम्प्रूव्ड एंड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। So new technologies have to be accepted by primarily focusing on its positive results? No. यहाँ पे वो बोल रहा है टेक्नोलॉजी अच्छी है, एक अच्छा मीन्स है, बट एंड जो है वो अनइम्प्रूव्ड है। सो ये पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है एक तरीके का। सो दिस इज नॉट राइट। न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट अ हिंड्रेंस टू द फिजिकल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, दिस इज नॉट सेइंग दैट। पुअर मेंटल हेल्थ इज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, नॉट एज सच, not as such. New technology should be looked upon with skepticism considering its negative impact. This is the most apt explanation of what was said by the person in the passage. Option D is the right one. 108, which of the following statements strengthens the author's argument? चलो एक क्वेश्चन strengthen का दिख गया finally. Regarding the negative use of smartphones among the youth. स्मार्टफोन्स का क्या नेगेटिव यूज है, उस यूज़ है यूथ में, ऑथर के इस स्टेटमेंट को कौन सा स्ट्रेंथन कर रहा है ये आपको चेक करना है। एक्सेसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन्स मे लीड टू वीकेंड फैमिली रिलेशनशिप्स। देयर हैज टू बी एन अनहिंडर्ड यूज ऑफ स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स हैव इकोनॉमिक यूजफुलनेस एंड ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन्स एट एन अर्ली एज रिजल्ट ड्यू टू लैक ऑफ केयर बाय पेरेंट्स। अब ये ऑप्शन बी सी डी जो है वो तीनों ही गलत हो जाते हैं। अगर आप बी देखोगे तो ये तो पॉजिटिव, मतलब ये तो अलग ही वे की बात बोल रहा है कि अनहिंडर्ड यूज छोड़ दो स्मार्टफोन्स का। ये भी आपको बोल रहा है कि इकोनॉमिक यूजफुलनेस है, इसको भी छोड़ दो। यहाँ बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रेंथन कर रहा है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव यूज ऑफ स्मार्टफोन्स अमंग द यूथ। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, वो स्ट्रेंथन वीकन में एग्जैक्टली वही चीज़ ढूंढते हैं जो पैसेज में होता है। नो, स्ट्रेंथन वीकन में वो चीज़ें नहीं आती हैं जो पैसेज में मेंशन होती है। इट्स नेवर अ रीस्टेटमेंट, इट हैज़ टू बी अ रीस्टेटमेंट इफ इट एड समथिंग, ओके, इट कैन नॉट बी अ मियर रीस्टेटमेंट ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यार कैसे लिंक करेंगे, तो लिंक ऐसे होगा कि जब स्मार्टफोन्स का एक्सेसिव यूज़ है उससे फैमिली रिलेशनशिप्स वीकन हो सकते हैं। उस केस अगर आप ये चीज़ को वैलिडेट कर दो तो ऑथर का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो वैलिडेट हो जाता है। ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए और डी थोड़ा डाइसी लगता है बट आई थिंक ए इज मोर करेक्ट। चलो, so that's it. This was the critical reasoning section for all of you, right? Hopefully this in-depth analysis could help you understand and grasp everything better, to give you a better knowledge, a better analysis as to what exactly was asked in the examination and how did you perform. अब आपका काम क्या है, अगर आपके पास आपका कार्बन OMR होगा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस टैली कर सकते हो और उसके हिसाब से जो भी आपका स्कोर बनता है without any negativity or any holding back yourself, you can put those scores in the comment box for us to see and analyze कि भाई बच्चे क्या स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, right? Also let us know how did you like this video. For more such interesting videos and for more such in-depth analysis, stay tuned with the Adda 24/7 channel. Thank you so much for joining, guys. All the best.